Namaste and a very good afternoon to all of you. I'm Nidhi Kumar, your host for today. We are extremely excited to bring to you the Eat Right India initiative of FSSAI, adopted by Herbalife Nutrition, Karnataka. Herbalife is all committed to make the state healthy and safe in their series of the initiative. Also acknowledging our broadcasting partners, the very eminent Mitro app, Health Set Go, and Sharp Foundation. And together, we'd like to extend our fervent welcome to all of you on this session. According to Ayurveda, all good health starts with diet and digestion. Accordingly, one can do all the most important things for our health every day. And food is the most important medicine. Children are powerful changes of society, and children are the most powerful change engines to bring a change in society also. So we'd like to share with you जिनके पास स्वास्थ्य है, उनके पास आशा है, और जिनके पास आशा है उनके पास जिंदगी में सब कुछ है. तो आज बात करेंगे आपके और हमारे खाने पीने की जिम्मेदारियों की. Today's event we are going to talk about balanced diets from the Indian heritage, and I'd like to introduce to you our very famous eminent guest, Chef Harpal Singh Sokhi, who's a celebrity chef known as the Energy Chef of India and now the Dancing Chef of India. He has had this vast experience of 25 years plus in the hospitality industry. He's also known as a culinary icon across different nations. He has been articulating the approach and process of food businesses set up for various clients situated in different parts of India and globally, and his end-to-end consulting right from conception to implementation to operations has benefited his clients across the globe. He's also the founder of 4 chains of restaurants that are Bibi Jaan, Dharoom, Chika Chika, and Twist of Tadka. And he's known for his famous dialogue, Namak Shamak. हरपाल जी, सच अ प्लेजर. बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार, स्वागत है जी सभी का. जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल जिस तरह पैंडेमिक में इतनी निराशा फैल गई है और खाने पीने का मतलब ही कुछ और हो गया है, काढ़ा और इस तरह की चीजें हमारे जहन में आती हैं कि भाई अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लो. और भारत की संस्कृति तो छाती है, भारत की सतरंगी सभ्यता जो है उसमें ये सारी जड़ी बूटियां हमें मिल जाती हैं. हल्दी, टर्मरिक, आंवला, मोरिंगा, ये सब चीजें, गिलोय, ये सब हमारे पास हैं जो कहीं नहीं है. तो इस पैंडेमिक से रिलेटेड कौन सी चीज आप एडवाइस करेंगे, खासकर बच्चों की अगर बात करें जो घर में रह रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, स्कूल में प्लेग्राउंड्स बंद है, पार्क्स बंद है इस समय में, और काफी खराब हालात हो रहे हैं. अगर बच्चों की बात करें तो क्या कहेंगे, आपको क्या लेना चाहिए उन्हें? सभी को नमस्कार. मेरा ये पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और बहुत एक्चुअली मैं कहूंगा कि बहुत मेंटल प्रेशर है, बहुत ज्यादा. मतलब तो ये सबसे ज्यादा हम सबको खा रहा है. यू नो, समवेयर और द अदर दिस इज किलिंग अस. This is actually a silent killer. It's like diabetes. Diabetes फिर भी आप बता सकते हैं. Mental pressure, mental health is known only to an individual and is ashamed of talking about it. Within the family also, क्योंकि ऐसा लगेगा कि फैमिली को अरे क्या बात कर रहे हैं, ये तो मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे तो होते रहता है, लेकिन we'll overcome it. But there is an underlying pressure, okay, which we all need to address. So how do you address that? One is togetherness, okay, talking to each other, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को इन्वॉल्व करना हर चीज में. तो यहाँ पे खाने में भी अगर इन्वॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो समय गुजरा है, बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन बहुत लोगों को एक फैमिली मोमेंट भी मिला. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको फैमिली मोमेंट बनाइए किचन में और सभी को सिखाइए. तो ये जब सीखेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आप अपनी चीजें बैलेंस कर लेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी चीजें
भूलते जा रहे थे हम, प्रेशर रहता है ऑफ कोर्स, जब आपके बच्चे होते हैं छोटे तो पीयर प्रेशर रहता है कि बाहर जाके खाना है, थोड़ा जंक इन्वॉल्व करना लाइफ में, बिकॉज दैट इज द इन थिंग। घर का खाना थोड़ा सा उसको अलग हट के रखना है, बट ये चीजें अब वापस आ गई हैं। तो पेरेंट्स भी ये कर रहे हैं कोशिश कि सबको घर का खाना मिले, और घर के खाने में जो इम्पोर्टेंस है वो बताई जाए लोगों को वर्ल्ड ओवर। देखिए, एक एक वर्ड मैंने खुद यहाँ पे मैं पढ़ाई अभी वापस शुरू कर दी मैंने अपनी, और एक वर्ड मैंने सुना है और सीखा है अभी, एंटी वायरल इंग्रेडिएंट्स। ये जानना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तानी खाने में चाहे आप नॉर्थ जाएं, साउथ जाएं, ईस्ट जाएं, वेस्ट जाएं, हर घर में एंटी वायरल इंग्रेडिएंट्स हैं किसी ना किसी रूप में। चाहे वो अदरक के रूप में हो, चाहे वो ब्लैक पेपर के रूप में हो, चाहे वो मैंगलोरियन पेपर के रूप में हो, चाहे लखनऊ में कबाब चीनी के रूप में हो, चाहे वो लॉन्ग पेपर के रूप में हो, चाहे वो लहसुन के रूप में हो, चाहे वो प्याज के रूप में हो, और चाहे वो हल्दी के रूप में हो। ठीक है जी। इनसे जुड़ी हुई कई सारी ऐसी पारंपरिक चीजें हैं, आमतौर पे रोजमर्रा के जीवन में ये इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई कई सारी ऐसी दादी माँ के नुस्खे हैं जो आज बहुत काम आ रहे हैं। बहुत मतलब एक्चुअली बहुत काम आ रहे हैं। मैं खुद जानता हूं कि बचपन में अगर मुझे सर्दी खांसी होती थी तो हमारे यहाँ एक बहुत बुजुर्ग साउथ इंडियन बंदे थे और बहुत ही प्यार से गाते थे, उनके पास हम चले जाते थे। वो फ्री में, एक्चुअली फ्री में तो नहीं कहूंगा, वो दिल से एक चीज करते थे, गुड़ को, जैगरी को मेल्ट करते थे, उसमें हल्दी और ब्लैक पेपर एकदम ज्यादा डाल के मिला के आपको एक एक चम्मच चटवाते थे। तो गले में कुछ खराश हो गई या सर्दी खांसी लग रही, आपको चटवाया, एक दिन में वो चीज गायब। बताइए, मतलब ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनका महत्व इतना ज्यादा है, आज वर्ल्ड समझ रहा। और मैंने 3-4 दिन पहले, आज क्या है, आज हम शायद बैठे हैं 15 या 16 जून को, 15 जून को, 3-4 दिन पहले WHO has recognized a few antiviral ingredients, of which there is ginger, there is black pepper, there is turmeric, okay, and उनका इस्तेमाल करने से उन्होंने क्लियरली कहा है कि आपके बॉडी को जो एंटीवायरल नेचुरल फ्लू से फाइट करने के लिए नेचुरल चीजें जो आप इस्तेमाल कर लेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये मतलब ये तो WHO अभी कह रहा है, हमारे वेद पुराण, ठीक है, जितने आयुर्वेदिक किताबें हैं वो सभी कब से कह रही कि आपको अगर सही जीवन जीना है तो टेक फूड एज योर मेडिसिन। नाउ इज द टाइम। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्ट समय है। थोड़ा सा हम हिल गए हैं, लेकिन इससे फायदा भी बहुत हुआ है कि हम सीख गए हैं बहुत सारी चीजें। और जाने अनजाने में एक ऐसा इंग्रेडिएंट गिलोय जो बहुत कम लोग जानते थे, अब शायद अगर पहले 20 लोग जानते थे, अब 120 लोग जानने लग गए। मतलब अगर मैं परसेंटेज गिनूं तो 20% हिंदुस्तान अगर पहले जानता था, और वो भी ऐसा जिनको ये लगता था कि गांव में तो हमें ये रोज इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पे मच्छर बहुत है, थोड़ी सी हाइजीन की प्रॉब्लम है, कच्चे घरों में रहते हैं, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो हमें ये एंटीवायरल चीजें खानी है। उनके लिए ये रोजमर्रा का जीवन है, बट हमारे लिए ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया। चलिए इसी बहाने से ये चीजें हमारे घर पे तो पहुंची, कैसे न कैसे ही हमारे घर पे पहुंची, कैसे न कैसे ये बच्चों के दिमाग में अब जाएगी और बच्चे जो है सीखेंगे। और आने वाले समय में आई एम श्योर कि जिस तरह हम अब बात कर रहे हैं, मोरिंगा की बात कर रहे हैं, हम गिलोय की बात कर रहे हैं, हम करी पत्ते की बात कर रहे हैं, हम जिंजर की बात कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे अश्वगंध हो गया, शतावरी हो गया, इन सारी चीजों की जो हम बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेट की हुई मिलेंगी इंग्रेडिएंट्स में, रेसिपीज में। आने वाले समय में आपको ये शेल्फ पे भी मिलेंगे कि अश्वगंध ब्रेड फॉर एग्जाम्पल, ये मिलेगी आपको, और आप बड़े
चाव से इसको लेके जाएंगे घर पे, भाई ये अश्वगंध ब्रेड है, इसमें बड़ी मजेदार वाली चीजें हैं। तो देयर इज सो मच इंडिया हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड, ओके, एंड it is learning for us, and the world will learn, probably, I believe, if we don't learn faster, the world will learn faster than us. Because in the last 1 month that I've been digging out all the books from the library, मैं ये देख रहा हूं कि जितनी मैंने किताबें निकाली है, ठीक है जी, उसमें जितने फॉरेन ऑथर्स है टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक फूड, I don't see too many Indian authors talking about Ayurvedic food. So it's important that we all incorporate this simple thing, जो हमारे पास है, जो हमारा है, उसको हम अपनाएं और एक बेहतर जीवन बना बसर करें। बहुत सारी चीजों का समस्या, बहुत सारी चीजों की समस्या है इसमें। आई टेल यू, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं अभी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उससे मुझे खुद लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब हमें कुछ थोड़ा सा खाने के मामले थोड़े से प्राचीन काल चले जाते हैं और वो विद्या को लेकर आके आज के जीवन में अपनाते हैं। Harpal ji, you're an epitome of that refreshing twist in Indian cuisine. Correct. What is the underlying concept or mantra in your style of cooking? How does it differentiate you from the others? देखिए, मुझे सबसे पहले ये लगता है कि मैं थोड़ी सी अपनी कहानी इसमें जोड़ देता हूँ कि जब मैं एक 5 सितारा होटल में शेफ ट्रेनी था, तो शुरुआत में मुझे भी चाह था कि आई विल गो एंड लर्न वेस्टर्न फूड, आई विल गो एंड लर्न बेकरी, आई विल गो एंड लर्न चाइनीज। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग, इट ऑलवेज डिड लॉट ऑफ गुड टू मी। जब मेरी बारी आई और जब मुझे इंडियन किचन में डाला गया, तब मुझे लगा कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है। दिस इज, I have entered Amazon, and I don't know whether I'll be able to conquer in my lifetime, but there is so much of pleasure. I mean, I'm talking to you and I'm getting goosebumps here. It is actually that feeling, okay? And that led me to learning to an extent that I started questioning my ustads on day one itself. Okay, मैं उनको ये पूछता था हमेशा कि शेफ, आपने गोभी बना दी, तो इसमें अदरक ही क्यों डाला आपने, लहसुन क्यों नहीं डाला? आज के तारीख में जबकि डाल देते हैं लोग, जो कि गलत है। ओके, एब्सोल्युटली गलत है ये कि आप लहसुन डाल दे रहे हैं। नहीं डाल सकते, आपको अदरक डालना है, ठीक है? जिस चीज का एंटीडोट आयुर्वेद में भी लिखा है, आपने उसको अपनाना है, ताकि आपको प्रॉब्लम इनिशियली नहीं पता चलती, लेकिन आप कई बार रात को बैठते हैं, आज यार खाने में कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसलिए हुई है कि कुछ तो एंटीडोट सही नहीं था घर पे जो बना है, ठीक है ना, वो आपने वहां गड़बड़ कर दी। तो वहां पे जो गड़बड़ है वो विद्या शायद आपके पारंपरिक तरीके से आपके घर पे नहीं आए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती। तो वो मैंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि वाटरमेलन है तो आप इस पे जिंजर पाउडर क्यों डालते हैं? भाई लहसुन का पाउडर डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं डाल सकते आप, ठीक है ना। वाटरमेलन है तो दूध क्यों डाल देते हैं? और मैं ये ऑनेस्टली एक क्वेश्चन बताऊं, जैसे मेरी टीम ने हाल ही में एक वीडियो शूट कर दिया था और मैं उसके काफी खिलाफ था। मैंने कहा वाटरमेलन मिल्कशेक मत बनाइए, इट इज एब्सोल्युटली एंटी, इट इज पॉइजनस। और बॉम्बे की कई ऐसी स्ट्रीट फूड्स में आपको ये शरबत मिलता है, शरबत मोहब्बत के नाम से, एकदम गलत है। लोग चाव से पीते हैं, नहीं पीना चाहिए भाई। जो चीज गलत है वो गलत है, आप नहीं पी सकते। मस्क मेलन में दूध नहीं, इट नॉट अलाउड है, ये नहीं कर सकते आप। तो जो चीज कर सकते हो वो करिए। मैंगो विद मिल्क बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी है, क्योंकि ये वही वाली कहानी कि धीरे 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 बिल्ड होती है और एक परमानेंट डिजीज का रास्ता बन जाती है। और उसको इरेडिकेट करना, फिर आपको वापस आपके रूट्स में जाना पड़ेगा और उसी तरह के प्रिंसिपल्स अपनाने पड़ेंगे और निकालना पड़ेगा, ठीक है। यूं ही नहीं कर सकते आप, वरना आपको एलोपैथी खा के उसको सबड्यू करते रहना पड़ेगा, उसको दबाए रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमारे पास खाना एक सोल्यूशन है, आयुर्वेद बहुत बड़ा सोल्यूशन है, तो हमें ये अपनाना चाहिए और ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैंने शुरुआत में अपने जीवन में ये अपनाना शुरू किया कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। जब उन लोगों से जवाब नहीं मिला, उस्तादों से, अरे he dropped. ये हाँ,
सॉरी क्या हो गया? तो जब उन लोगों से, उस्तादों से जवाब नहीं मिला मुझे, तब मुझे वापस अपनी बुक्स पे जाना पड़ा। एंड आई हैड अ वेरी गुड हैबिट, आई स्टिल हैव, कि मैं बुक्स बहुत सारी खरीदने लग गया और मुझे जवाब चाहिए थे। तो मैंने ऐसे ही हीलिंग क्यूजीन एक बुक ढूंढी विद आयुर्वेदा, जैसी ये बुक है आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ, हर्बल रेमेडीज, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये बुक बिलीव मी मैंने खरीदी और ये मेरे लाइब्रेरी शेल्फ में चले गई सीधी। और कुछ दिन पहले मैंने शुरुआत की, तो 2011 में मैंने बुक खरीदी थी। और आज जब मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं, देखिए इसमें एक बड़ी मजेदार चीज है। देखिए, so we were talking about flu and this mentions clearly about flu, and ये जब बुक लिखी गई थी, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने तब भी लिखा था कि फ्लू के वेरिएंट्स आते रहेंगे और आपको बचना किन किन चीजों से है और किन किन चीजों को आपको खाना है। तो ये देखिए, हर्बल एंटीवायरल फूड्स which is clearly mentioned as okay, you need to have बोडो लीफ लिखा, जो अजवाइन का पत्ता है ना, उसका डिकॉक्शन आपको पीना है। आप सोचिए, माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। अजवाइन का पत्ता आया, क्यूबेब बेरी बोलते हैं उसको, मैंगलोरियन पेपर जो वो फिश करी में यूज करते हैं, वो डिकॉक्शन में डालना है, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको गार्लिक खाते रहना है, आपको प्याज खाते रहना है, ठीक है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू, जो हम सब ने अभी देखा है, जिंक, read this, zinc. Yes. So it is clearly mentioned zinc, and it is the next thing, vitamin C. Yes. So I am so amazed that something which has been written through Ayurvedic texts, okay, which clearly mentions that आपको naturally क्या क्या चीजें खानी है, और ये फ्लू में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। and I'm amazed, और मैं सारी चीजें अपने स्टूडियो में अभी मंगा के देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। एंड ट्रीट फूड एज अ मेडिसिन, इट्स गोइंग टू ओनली हेल्प। मैंने अरबी के पत्ते सुने थे, अजवाइन के पत्ते पहली बार सुन रही हूँ। अजवाइन के पत्ते, it's a clear mention there, you know, if you have that, and it's a great information, okay. बेरी कौन सी बताई आपने? बेरी, स्यूबेब बेरी कहते हैं, मैंगलोरियन पेपर, उसको कबाब चीनी भी कहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी में वो पुराने जमाने के मुगल कुक्स वो अपने कबाबों में डाला करते, खास तौर से जब गलौटी कबाब या ऐसे मटन की डिशेस बनाते थे। मैंगलोर में फिश करी वगैरह बनाते हैं या सब्जियां बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो ये बड़ी कमाल की चीज है, ये हमें विद्या मिली है लेकिन हमने सीखी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि इसमें दोष बहुत लोगों का आता है। सो मैं वो दोष की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं वो अपॉर्चुनिटी की तरफ जाऊंगा कि मैंने जब होटल मैनेजमेंट पढ़ा था तो मुझे कहीं भी ये नहीं सिखाया गया था कि आयुर्वेद एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। इफ यू आर लर्निंग होटल मैनेजमेंट एंड इफ यू आर चूजिंग कलरी एज योर करियर, एक सब्जेक्ट आयुर्वेद होनी चाहिए। अगर फ्रेंच सिखाते हैं जिसका उतना मुझे महत्व नहीं है अभी, आई एम अ शेफ इन इंडिया, होगा when I travel internationally and there's no harm in learning French, but मुझे संस्कृत सिखानी चाहिए, okay, I should know Sanskrit so that I'm able to read those texts, जो ancient texts, I should be able to read them, चराक संहिता, ये सब बिल्कुल नो। तो ये मुझे लगता है कि ये जो भी माध्यम के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ और निधि जी के थ्रू कई सारे लोगों तक पहुंच रहा हूँ, तो ये जो लोग सुन रहे हैं, जो एजुकेशन में है, वो प्लीज ये इनकॉर्पोरेट करें अपने करिकुलम्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई टेल यू, इफ यू आर एन MBBS कॉलेज ऑल्सो, प्लीज आप ये चीज अपनाएं। देयर इज नो हार्म इसमें। एलोपैथी को डिग्रेड करने वाली बात नहीं है, इंटीग्रेट करने वाली बात। इंटीग्रेट करिए। आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिकॉज एक जो हम चीज सीखते हैं कि डॉक्टर से बात करने में ही प्यार से आपकी बीमारी आदि गायब हो जाती है। सो अ डॉक्टर इज ऑल्सो टॉट communications with the patient, okay? If you are learning communications with the patient, why can't we learn, okay, Ayurveda? Very well, sir. Which is our ancient heritage. Correct, absolutely. और solution है,
जड़ से उखाड़ फेंकने का सोल्यूशन है, जो दूसरी साइंसेस में नहीं है। अगर वो डिजीज मतलब इट हैज नॉट गॉन टू एन एक्सट्रीम, जड़ से उखाड़ फेंकने का आपके पास सोल्यूशन है, और ये 100% है। आई टेल यू, इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है जीवन में। एंड आई विल गिव यू अनदर फ्यू एग्जांपल्स आल्सो एज वी कीप टॉकिंग अहेड। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जैसे गिलोय की बात हमने की, आपने की, जी मोरिंगा की करी, इसके अलावा मुलेठी, ब्रह्मी, जी वसाका, जी जी हरितकी, जी इफ आई एम सेइंग इट दैट करेक्ट, शुंठी, जी। क्वाक, ये सब क्या है हर्बल प्रोडक्ट्स या तो ऑर्गेनिक ये प्रोडक्ट? आपने देखा होगा, जब कई बार पहले आपको दस्त लग जाते थे, आपको उल्टियां आती थी, तो मम्मी मुलट्टी दे देती थी, ठीक है ना। एक लकड़ी जो है आप मुलट्टी की डाल दो। अश्वगंध जैसी चीज तो अब समझ जाइए, इट इज लाइक it is something which everybody wants to incorporate in life. So everybody is using ashwagandha in life, okay, and that is something which is very important. Suddenly moringa मुझे आज भी याद है, मोरिंगा का पाउडर। और उस जमाने में पाउडर नहीं मिलता था, मेरी मम्मी पाउडर नहीं लाया करती थी, तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मोरिंगा लेती थी और मोरिंगा की सब्जी बनाती थी, ओके। और सब्जी बना के, क्योंकि पिताजी को डायबिटीज थी, तो वो डायबिटीज के लिए उनको देती थी ताकि वो डायबिटीज गिर जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी कमाल की चीजें थी, और ये चीजें वो इनकॉर्पोरेट करती थी अपने। और जैसे हम मुझे आज और एक चीज याद है कि हम जब भी जामुन लाते थे घर पे, तो मेरी मम्मी कभी भी जामुन के बीज फेंकने नहीं देती। शी वुड नेवर, after we would use the jamun, she would kind of take those jamuns, okay, wash those seeds, dry it in sunlight for nearly 10-15 days. जब वो ड्राई हो जाते थे, वो कूटती थी, और पिताजी को एक एक चम्मच मिलता था, ताकि, और हमको ब्लड क्लेंजर के हिसाब से मिलता था, पिताजी को डायबिटीज के हिसाब से मिलता था। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें थी, बहुत लोग अपनाते थे, और बड़ी कमाल की चीज। और पर्सनली मेरी एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी रहा। आई रिमेम्बर व्हेन माय फादर हैड अ स्ट्रोक, हिज डायबिटीज वेंट अप वेरी हाई, एंड बहुत सारी चीजें अपना रहे थे हम वहां पे। एक बंदा आया, पुराना बुजुर्ग, बोलता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा पिताजी का डायबिटीज। बोला कुछ नहीं हरपाल जी, दूध जो है ना, नींबू से फाड़ दो, और जो छना बचेगा ना, वो लाके पिताजी को खिला दो। और डायबिटीज का ये जो तुमको फिगर दिख रहा है, ये नहीं गिरा ना 2 दिन, मुझे बताना। तो हमने चुपचाप वो किया, डॉक्टर को नहीं बताया, हमने चुपचाप किया, पिताजी को खिलाया, और 2 दिन में डायबिटीज जो 300 350 थी, ये मेरे आंखों देखा है कि ये हाल 120 पे आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे पास है हिंदुस्तान में, हमें अपनानी चाहिए, हमें ये विद्या ट्रांसफर करनी चाहिए बच्चों में। आप चाहे होटल मैनेजमेंट करें ना करें, अपने घर के किचन में स्वास्थ्य बरकरार रखनी है, तो ये अपने बच्चों को सिखाइए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ मैं जानना चाहूंगी, आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो मुझे भी बहुत पसंद है, नमक शमक, और वो कैसे शुरू हुआ? और हमें कोई एग्जांपल दीजिए बैलेंस डाइट का या सस्टेनेबल हेल्दी डाइट कॉम्बिनेशन का, खासकर की हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, जो आजकल ना पार्क जा पा रहे हैं ना खेलने जा पा रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा। सबसे बड़ी समस्या यही है निधि जी, कि जो 30% पॉपुलेशन एस्पिरेशन के नाम पे हम लोग सब अर्बन कल्चर अपना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अर्बन कल्चर में माँ बाप इतने बिजी होते हैं, बिकॉज देयर आर राइजिंग कॉस्ट्स इन लाइफ, राइट, और बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाता, और खेलने के लिए कोई जाता नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इसलिए लोग घबराते हैं, अरे बच्चे को मीठा मत दो, इतना मत खिलाओ। मैं बंगाल में पैदा हुआ हूं, और मैंने लोगों को देखा है 50-50 रसगुल्ले खाते हुए, गुलाब जामुन खाते हुए, और भागते थे, दौड़ते थे। उस समय ठीक है, लोग साइकिलिंग करते थे, आज उस समय मजबूरी में करते थे, आज शौक पे करते। लेकिन ये बात पक्की है कि बच्चों को खेलने की जगहें नहीं, तो अगर ये सारी चीजें नहीं है, तो ये पेरेंट्स का, ठीक है, आपको जगह, आपको समय ढूंढना पड़ेगा, वीकेंड आपको देना पड़ेगा उनके लिए, आपको ये अपनाना पड़ेगा उनके लिए कि वो स्वस्थ रहे, तो आपको उनके साथ खेलना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नो मोर गेम्स
on the iPad or on computer. Please, you have to have a physical activity. ये बहुत जरूरी है. मतलब ठीक है, नमक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नुकसान करता है. और मेरा जो आपने डायलॉग आपने बोला कि आया कैसा, इसके पहले भी पीछे भी एक कहानी थी. आई रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड माय टेलीविजन शो, तो मुझे हमेशा मेरे डायरेक्टर बोलते थे कि हरपाल ऐसा कुछ करना है जो अलग हो, हटके हो. हाँ, मतलब और जो जिस चीज से आप ये समझ जाओ कि टैगलाइन बन गई. सालों तक आप किसी के किचन में बसे रहोगे. तो बहुत सोच समझ के और बहुत सोचने के बाद जब मैंने ये शो मेरा टर्बन तड़का शुरू किया, तो उसमें हमने ये देखा कि सारी चीजें डल जाएंगी ठीक है, लेकिन नमक अगर नहीं डाला तो स्वाद बरकरार नहीं रहता. और मैं ये नहीं कहता हूं कि नमक आप एक्सेसिव डालो, उतना ही डालो जितने की जरूरत है. और नमक डालना एक परंपरा है सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे बड़ी एक परंपरा ये है कि एक खुशी जो है आपके चेहरे पे आनी चाहिए जब भी आप नमक डालें. और मैं हमेशा देखता था, और मेरी मदर का भी एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि कैसे एक चीज एक एक्चुअली मैनेजमेंट, मेरे हिसाब से हमेशा मैं वो उस चीज को मैनेजमेंट के हिसाब से जोड़ता हूं कि हाउ कैन द लेडी ऑफ द हाउस work for 365 days without asking. An employee who works 365 days in an office keeps asking his boss every now and then, I worked so hard, you didn't give me this, you didn't give me that, you didn't give me this. So he is always after a question mark. And he's not waiting for the boss to evaluate. Okay. Here, a lady of the house is sitting quietly and delivering on time. 7 बजे नाश्ता, मतलब 7 बजे. 7 बजे अगर 5 लोगों का टिफिन पैक होना है तो 5 मतलब होना है. एक दिन का नागा नहीं, चाहे बुखार क्यों ना हो. और 12 बजे अगर लंच जाना है तो जाना है. शाम को चाय है तो चाय है ही है, और डिनर है तो है ही है. और कभी कभार मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं कि आज घर पे पार्टी है, और एक्सटर्नल प्रेशर. तो ये जब प्रेशर आप सोचिए कि एम्प्लॉय पे पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय बौखला जाता है, कहता कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूं, थक गया हूं. लेडी ऑफ द हाउस नेवर कंप्लेन, शी वर्क्स क्वाइटली. लेडीज ऑफ द हाउस देश भी चला सकती हैं, और बहुत अच्छे से. बिल्कुल 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 चला सकती है. मैं कहता हूं कि जो घर ठीक से चला सकती है और जो घर में ग्रोथ दे सकती हैं, वो देश भी चला सकती हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है. इसमें इस पैंडेमिक में हमने देखा ही है कि जो कंट्रीज में लेडीज वेर द प्राइम मिनिस्टर्स, दे केम आउट ऑफ इट फास्टर देन other countries. Okay, and there's a best example is New Zealand, and we see the lady prime minister there कितने बढ़िया काम कर रही हैं. और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपना रहे हैं लोग, तो हम अपनाएं. और ये जो मैं वापस वहां आता हूं कि ये जो मैं अपनी मम्मी को देखता था कि वो कितने शांति से काम कर लेती थी लेकिन कंप्लेन नहीं करती थी. तो एक खुशी लाने के लिए इन सब गृहिणियों के चेहरे पे मैंने जब शूट शुरू किया तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था, ये मेरे अंदर आया. और मैंने जब नमक डालना शुरू किया तो पंजाबियों में वो आदत होती है एक अल्फाज का किसी उल्टा जोड़ना ही जोड़ना, लस्सी वस्सी. तो मैंने वही सोचा यार नमक शमक. तो उस दिन से मेरे डायरेक्टर ने बोला हरपाल इसको कुछ कर ले. क्या कलाम हो गया आपका. हाँ, तो मैंने कहा ठीक है ये नमक शमक डालना ही है. तो हम बोलते हैं तो ये नमक शमक डाल देते हैं. So it has become more a happiness quotient than adding salt. It is not about adding salt. This tagline is not about adding salt. It is about spreading happiness in the kitchen. It is about spreading happiness in the family, and that's what I did with this tagline of mine. And I actually thank all the viewers who are watching me कि आप सभी लोगों ने इस टैगलाइन को बड़ा किया है. मैंने तो सिर्फ बोला है, आपने बड़ा किया है. आपने इतना प्रेम और स्नेह दिया है इस टैगलाइन को कि ये सिर्फ हिंदुस्तानियों में पॉपुलर नहीं है, ये विलायत में बहुत सारे लोगों में बहुत पॉपुलर है. जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, दरखास्त करूंगी कि 1-2 रेसिपीज आप हमें जरूर दिखाएं. जी, तो आपने जैसे बात की है तो करूंगी मैं और आप दिखाएं और मैं जी.
मैं आपको अभी कैमरा एंगल चेंज करके आपको एक बहुत बढ़िया रेसिपी बताऊंगा। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, जैसे निधि जी ने शुरू में बात भी की थी, तो यहाँ मोरिंगा मेरे पास पत्तियां पड़ी हुई है। हम मोरिंगा की चटनी बनाएंगे और उसके बाद मतलब बहुत ही प्यारी वाली, और उसमें थोड़ा आंवला, लहसुन, करी पत्ता, ये सारी चीजें डाल के, और मैंने ये पारंपरिक, देखिए ये वाला ये चीज लेके अरे आया हूँ। वाह। तो ये चीज में हम बहुत सी बढ़िया मैं काम आपको करेंगे। फुल स्क्रीन करना चाहूंगी इससे जी पहले कि आप ये जी स्टार्ट करें। जी अ, बिल्कुल। कैसे करें फुल स्क्रीन? हाँ, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं वो मोरिंगा रेसिपी। तो ये मैं हाँ अपनी टीम को देता हूँ, ये हाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव ये जी। रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने रखी है, बहुत ही सरल चीज है। मोरिंगा की चटनी बनाने के बाद हम उसका एक सैलेड भी बना लेंगे। देखिए कि ये जो चीजें उगती है ना, तो ये हम अदरक वगैरह के छिलके फेंक देते हैं, मत फेंकिएगा। तो ये इसको धो लीजिए अच्छे से। ये जरूर है कि अब लोग क्वेश्चन करेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है, तो जी अगर बहुत ज्यादा डर लगता है आपको कि पेस्टिसाइड यूज होता है, तो सब्जियों को थोड़ी देर बेकिंग सोडा में डाल के रख दें, ताकि जो भी पेस्टिसाइड है वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाए। ठीक है जी। थोड़ा अदरक ले लेते हैं, इसको स्लाइड करते हैं, और इस चटनी को एंटीवायरल चटनी बनाते हैं। ठीक है जी। ये लीजिए, अदरक ले लिया, लहसुन ले लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा ही लेते हैं, ये लीजिए, और लहसुन को भी मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। ठीक है। तेल डालते हैं, तेल काफी गर्म, थोड़ी सी ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। और तेल कोशिश करें कि जितना नेचुरल इंग्रेडिएंट से यूज किया हुआ तेल मिले आपको, ज्यादा बेहतर है। तो थोड़ा हींग डाल लेते हैं, ये लीजिए डाइजेशन के लिए बढ़िया। जीरा, ये अदरक और लहसुन, इसको भून लेते हैं। बहुत सिंपल चटनी, मजेदार बनाएंगे। ठीक है जी। और इसमें अब मैं ढेर सारा करी पत्ता डाल लेता हूँ। मोरिंगा, ये लीजिए, जितने पत्ते पत्ते डाल सकेंगे उतना बेहतर। वायरल के लिए ये भी कहा है कि चिली जितना खा सकते हो उतना बेहतर है। ओके, that book of mine which I am reading, it clearly mentions that you should take chilies as much as your body can absorb or as you can hold up। ठीक है जी। ये बहुत, ये लीजिए, ये बंद कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। और धनिया आप देखेंगे कि जो भी लोग डाइट वगैरह करते हैं, उनको सुबह धनिए का पानी पीस के पीने कहते हैं। जी। धनिए के बहुत सारे गुण है, सिर्फ खुशबू नहीं देता, बहुत सारे गुण। तो ये बेस तैयार हो गया, अब इसको रख लेते हैं। यहाँ पे आंवला है मेरे पास, तो आंवला डालेंगे नेचुरल खटाई के लिए। थोड़ा सा काट लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है देखिए स्वादिष्ट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, वाह 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 वाह, करेक्ट। क्या बात है। तो ये और टेस्ट तो जबरदस्त होगा, जो अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी दूर से नहीं टेस्ट कर पाऊंगी आज। करेक्ट। तो ये मैं थोड़ा सा एप्पल लेके जी। ये काट लेता हूँ। ये बोल में
थोड़े चने ले लेते हैं, इसमें एप्पल डाल लेते हैं। ये देखिए सैलेड बन रहा है आपके लिए। थोड़ा सा मैं फ्रेश नारियल डाल दूं, नारियल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। हाँ ठीक है, हाँ, श्रेडेड कर कुछ नारियल आप डाल डालते देते हैं अभी, ताकि एप्पल काला ना हो, और उसके बाद में चीजें डालेंगे। हैं। अरे वाह, और थोड़ा एक्चुअली सा दिस इज नमक व्हाट कर आई लीजिए कॉल अ यहाँ पे। हेल्दी एंड सस्टेनेबल बैलेंस डाइट। करेक्ट। तो ये करिएगा, नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं। तो थोड़ा सा सैलेड में डालिए, थोड़ा सा हम यहाँ चटनी में डालेंगे नमक। ठीक है, वाह वाह। ये लीजिए। मोरिंगा लीव्स की चटनी हो गई, हाँ, एंड इतना बढ़िया एंटी ऑक्सीडेंट सैलेड ये लीजिए। ये फुल ऑफ विटामिन्स। हल्दी डल गया, ये लीजिए। इसको मिक्स कर लें गरम में। अब तैयारी करते हैं चटनी की पिसाई करने। ठीक है जी, ये लीजिए। और ये एक्चुअल चटनी होगी जो इस तरह पीसी जाएगी, कूटी जाएगी बल्कि। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको सिलबट्टा बोलते हैं मेरे ख्याल से। सिलबट्टा, ये कूटनी बोलते हैं इसको एक्चुअली। अच्छा, कूटनी। तो सिलबट्टा जो होता है वो लंबा सा हाँ, पत्थर होता वो ऐसे बेलने की तरह होता है। हाँ। है। अच्छा, इसमें मिक्सी की तरह पीस जाती है एकदम बारीक। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। और साथ साथ में हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये देखिए, सब काम करिए, एक्सरसाइज करिए। हाँ। और सही बेहतर खाना खाइए। बिल्कुल। हैरानी इस बात की होती है, जो आपने पेजेस निकाल के बताए मुझे, जी, बहुत हैरानी की बात है कि 2009 की किताब में ये सब कुछ लिखा है जो आज हो रहा है। करेक्ट। और क्लियरली इमेजिन, क्लियर मेंशन ऑफ जिंक फॉर एंटी वायरल एज फॉर फ्लू। ओके, तो जिंक आपको पता ही है, हरे मटर जो हैं कच्चे खाने चाहिए, उबले हुए नहीं। तो जब सीजन में मिले तो छीलते छीलते कच्चे खाइए। ठीक है, मोरिंगा खाइए, ड्रम स्टिक्स खाइए, बहुत सारी ऐसी, पालक खाइए, मेथी खाइए। इतना एफर्टलेसली आप कर रहे हैं, इसमें काफी जोर तो लग रहा है। जी जी, जोर तो लग रहा है, लेकिन मजा मुझे उतना ही आ रहा है। यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग योर कुकिंग ना। बात करें ना, कितना एंजॉय करते हैं आप अपने खाने जी को। जी, ये एक्चुअली क्या है, इट इज थेरापेटिक, कुकिंग इज थेरापेटिक। तो आपको आना चाहिए पूरा मजा। जब आप चीजें बनाते हैं तो उसमें मजा लेते हैं, तब आपको आता है मजा। ये देखिए, ये कूटते वक्त अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, ये पीसते वक्त। ऑन अ लाइटर नोट, मैं ये सोच रही थी हरपाल जी, जी, हाँ, आपके घर में जब भी आपकी वाइफ बनाती होंगी तो वो आपकी तरफ देखती होंगी कि पता नहीं आज क्या नुक्स निकल जाए। नहीं नहीं, उल्टा है, उल्टा अच्छा। है मेरे घर में। हाँ। शी इज अ बेटर कुक देन आई एम। अच्छा, ग्रेट। तो मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं कि वो उससे मैंने सीखी है, जबकि उसने भी होटल मैनेजमेंट किया है। लेकिन चीजें बहुत जरूरी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, कि गोभी जैसे लोग खरीदते हैं, गोभी, तो वो कभी भी गोभी ऐसी नहीं खरीदेगी जो एकदम बंधी हुई हो, जो एकदम भरी हुई हो। हाँ। तो हमेशा कहती थी, बोले नहीं हरपाल, जो बंधी हुई है उसमें टेस्ट नहीं है। मैं उसको हमेशा पूछता हूँ, सिखाया किससे? तो बोले क्लियर, मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे ये। और जो एकदम फूल जिसके एकदम बंधे हुए हों, वो गोभी सही नहीं होती, वो नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है। और उससे दूसरी चीज और भी है, बोले जो खिले खिले फूल होते हैं,
उसमें साफ कीड़े नजर आते हैं, और गोभी वही खाएं जिसमें कीड़े हो। अच्छा। क्योंकि एक बड़ी सिंपल चीज है निधि जी, देखिए कभी आपने सोचा नहीं होगा कि कीड़े पड़े मतलब उसमें पेस्टिसाइड नहीं मारा गया है। हाँ, ठीक है ना, तो वो गोभी सही है, ऑर्गेनिक है, सही है। बिल्कुल। तो आपको अगर कीड़े निकालने हैं तो मेरी बेबे भी जैसे मेरी मम्मी करती थी, नमक पानी में डाल के रख देती थी, आप भी घर पे करिए, है ना। तो एक चीज जो डर है आपको इसमें पेस्टिसाइड है कि नहीं, ऑर्गेनिक के पीछे भागते हैं, गोभी वो ढूंढिए जो खिली खिली हो, अलग अलग फूल हो जिसके। आजकल बहुत ऑर्गेनिक फ्रूट की भी फार्मिंग शुरू हो गई है जी इंडिया जी, में। बिल्कुल बिल्कुल है, काफी बिल्कुल फूड बिल्कुल है। बिजनेस शुरू हो गया इसका। तो ये देखिए जी, कितनी बढ़िया चटनी है हमारी, तैयार हो गई है। अब ऐसी चटनी अगर आपको मिले, क्या बात है, एंटीवायरल चटनी इसका नाम हो सकता है एक और, बिल्कुल। है ना। नमक सब कुछ सही। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ये मैं इसमें डालता हूं। नींबू, वाह 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 वाह। नींबू डालिए। हाँ। ठीक है जी। और चटनी अगर ऐसे रखनी है तो ऐसे रखिए। Excellent. Or you can even mix it in the salad and have it. बस यही Yes. किया, ये देखिए। What a treat, mouth watering. तो इसमें सारी चीजें बेहतरीन डल गई है आपके पास। हम सब विलायती सैलेड खाते हैं, ये देखिए आपके लिए बन गया बिल्कुल। Healthy and sustainable diet. बिल्कुल। एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ये मैं यहाँ डाल लेता हूँ। It's so marvelous. I mean, it is so appetizing, so tasty. Yummy is the word. And absolutely essential for a child's growth. If you यस, look at the देखिए nutritional value of this. एब्सोल्युटली प्रोटीन रिच, और इसमें मोरिंगा की गुडनेस, आंवले की गुडनेस, आपको सब कुछ मिल गई इस चटनी में। ठीक है जी। ये रेशे आएंगे, रेशे से घबराइएगा नहीं। इट इज गुड फाइबर, इट इज गुड फॉर योर गट। हम आजकल ये रेशा खाने से भी घबराते हैं, तो दिस इज डैम गुड। मजा आ गया। That's why they call you the dancing chef. We'll come back to the. Put me on the. This is so good, so good. Excellent. मजा आ गया। मुझे बहुत मजा आया। अब मैं यहाँ आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी अभी जी। आपकी जो वाइड रेंज ऑफ डिजाइनिंग है मेन्यूज की, उसमें मैंने कई चीजें पढ़ी थी आज, नजर मार रही थी मैं, तो मैंने देखा कि आप मल्टीग्रेन बर्फी, आयुर्वेदिक हनी, अनियन सिरप, बीट क्वास ड्रिंक, करेक्ट, और गिलोय काढ़ा, तो इन सब का महत्व मैं जानना चाहूंगी। have these been coined by you in the pandemic या आप पहले से ही ये चीजों को रेकमेंड कर रहे हैं? बड़ी मजे वाली बात है ना, I always invite people to my studio because for me learning never ends. Yes, बिल्कुल। And somehow I met this girl called Dhanishri. I would like to speak about her also. And she's a probiotic expert. I was coming to probiotics. Yes, so she was a probiotic. She's still a probiotic expert. And she said, Harpal, we have so much to talk about. कि अगर आपने प्रोबायोटिक खाना जीवन में नहीं अपनाया तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग समथिंग। द फर्स्ट थिंग is improve gut health. Okay,
ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर गट सही है नो, तो आप सब कुछ सही है। जिसको कहते हैं ना, आपने कई बार निधि जी बोला होगा, माई गट फीलिंग इज दैट, योर गट फीलिंग विल बी करेक्ट इफ योर गट इज राइट। इफ योर गट इज नॉट राइट, your gut feeling क्या will बात, never क्या be बात. right. And I think all problems generally start in the gut. Yeah. It is from All here diseases, yes. to here. It's directly connected. Okay. बिल्कुल. If your gut is not cleaned up, okay, जो पंचकर्मा करते हैं आयुर्वेद में, उसमें कई प्रकार की चीजें होते हैं, उसमें एक एनेमिक ट्रीटमेंट भी होता है। ओके, तो वो आप लेते हैं जब, तो आपका गट भी क्लीन होता है, और गट क्लीन करने के लिए प्रोबायोटिक चीजें खानी है आपने। तो ये मैंने शुरुआत की सीखने के लिए। और ये जो गिलोय का काढ़ा है, एक्चुअली मुझे कोई इल्म नहीं था कि मैं जब बनाऊंगा तो उसके बाद वायरस आएगा। ठीक है, 2019 में आई स्टार्टेड लर्न माई लर्निंग जर्नी अबाउट प्रोबायोटिक्स विद धनश्री, एंड शी बॉट फ्रेश नीम का गिलोय माय ऑफिस, और हमने उसका काढ़ा बनाया। तो गिलोय, अदरक, लवंग, ठीक है जी, हल्दी और अदरक, ये कूट के डाल के हमने काढ़ा बनाया, और मैंने बना के दिखाया लोगों को। और उसके ठीक 6-8 महीने बाद पैंडेमिक आ गया। उसके बाद सबने गिलोय 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 करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने देखा कि कैबेज से हम डरते हैं, लोग कहते हैं नहीं, कैबेज में एक वर्म होता है जिससे ब्रेन में इफेक्ट होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है, आप जरूर साफ कर लें कैबेज को, एक एक पत्ता खोल के देखिए, उसके बाद काट के नमक डाल के उसको रख दें, उसे फर्मेंट होने दीजिए, और वो खाइए। कोरिया में और जापान में बताया आपको, 6-8 महीने बाद बच्चे को मदर्स मिल्क नहीं देते, 1 साल बाद, एक्चुअली उससे 1 साल बाद नहीं देते। ये जो किमची का रस निकलता है, कैबेज का फर्मेंटेड रस निकलता है, और किमची का रस निकलता है, वो थोड़ा थोड़ा दिया जाता है ताकि उसकी गट स्ट्रांग। देखिए, छोटी सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप अपनाते हैं, खाते हैं, लोग मुझसे पूछते भी कि हम नमक इतना डालते हैं, वो नमक, शक्कर, जो जब आप प्रोबायोटिक चीजें करते हैं, वो सारी चीजें बैक्टीरिया खा के सेटल कर देता है। एंड बिलीव मी, वो इतना बढ़िया है, पूछिए मत। एंड whenever you have probiotic as a diet, use it for 2-3 months, stop. Okay, then use it for 2-3 months, stop. That's how you used to do. You have to. Yes. So that gives you the best benefit, and it's very important to incorporate probiotics. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रोबायोटिक जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। मैं एक क्लासिक एग्जांपल अपने घर से लेके आऊंगा। देखिए, साउथ इंडियंस प्रोबायोटिक कर्ड राइस में करते हैं। ठीक है, कर्ड राइस इज नेवर मेड इंस्टेंटली। ओके, it is not the process. I still remember I had a South Indian auntie next to my house when I was a child. उनके बच्चों के टिफिन में चावल को रात को दही में मैश किया जाता था, और उसमें दूध डाल के जो भी वो तड़का वगैरह लगाना होती थी वो लगा के, या सुबह तड़का लगाती थी, वो मैश करके टिफिन में बंद करके रख देती थी, और सुबह तड़का लगा के दे देती। तो रात भर लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन होता है, बच्चों को उससे बहुत बेहतरीन चीजें मिलती है। क्योंकि जाने अनजाने में आप ये सोचिए, गट सही है, दिमाग सही है। और मैं ब्लेम नहीं, मैं ये पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे डिफरेंशिएट भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है, अगर आप प्रोबायोटिक खाते हैं, आपकी गट फीलिंग सही है, ठीक है, तो आपका मेंटल बैलेंस सही है, जिसके कारण मैं समझता हूं कि साउथ इंडिया से सारे निकले हुए आज गूगल के चीफ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हैं, वो कहां से निकले? सिलिकॉन वैली पूरा। सुंदर पिचाई की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, सब है ना। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने अनजाने में ये एक रोल प्ले करती हैं, हम माने या ना माने। और ये मैं लोगों पे छोड़ देता हूँ कि आप मानिए मत मानिए, कुड बी जेनेटिक, व्हाटएवर, इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, दिस व्हाट आई एम टॉकिंग कुड बी वन ऑफ द रीजंस। बिल्कुल, अपने अनुभव की यात्रा के बारे में आपने हमें कुछ किस्से सुनाए। मैं जानना चाहती हूँ, आपके रेस्टोरेंट्स की चेन जो है, उसका जो मोटो है, उससे आप हम सभी को साझा करिए।
तो रेस्टोरेंट्स में देखिए अभी तो सिचुएशन बहुत ही खराब है अनफॉर्चुनेटली, एंड आई वुड लाइक कि लोग बाहर आए और सपोर्ट करें। देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई टेल यू, जैसे मेरे रेस्टोरेंट में मैं जहाँ कंसल्ट करता हूँ, कई बार यूएस में करता हूँ या ऑस्ट्रेलिया में करता हूँ, तो वहां पे जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जैसे पैंडेमिक उनका खुलता तो दे और या ऑर्डर करते, तो वो प्रोएक्टिवली ऑर्डर करते हैं जी और जी। let me support this restaurant, okay, हम्म। want people to come out and support these restaurants। तो इस माध्यम के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज ऑर्डर करें और सपोर्ट करिए इस इंडस्ट्री को, बहुत जरूरत है आपकी। तो मेरे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कुछ जलंधर में है, लॉन्च बार और इंडियन रेस्टोरेंट और कैफे जलंधर में है, पठानकोट में है, बॉम्बे में मेरे क्लाउड किचन्स हैं जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, एक मिसल के कॉन्सेप्ट पे जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, और एक साउजी टू बाउजी है। तो वो एक्चुअली इट्स कॉल्ड लव स्टोरी ऑफ फूड। इट इज द फूड फ्रॉम माय वाइफ्स किचन एंड माय, and later on we want to take it forward by saying that it could be from your wife's kitchen and your passion for food, or your passion for food from your city. We could incorporate that when we go to your restaurant, your city, okay, तो हम वहां जाके आपके पसंदीदा मेन्यू आइटम्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जो आइटम्स हैं आप पसंद करते हैं आपके शहर के, वो आपके मेन्यू आइटम में हम डाल सकते हैं। तो साउजी टू बाउजी इज दैट कॉन्सेप्ट। करंटली इट सर्व्स पॉपुलर पंजाबी फूड एंड a food of Vidarbha. So it's very good, and we started in 10 locations in Bombay, but unfortunately pandemic just started when the second wave actually just started. We just launched in February and the second wave started, but nonetheless we have not given up hopes. It's still there. और हमारा एक और ब्रांड है कॉल देसी चाइनीज, जिसको हम रेकड़ी चाइनीज कहते हैं, क्योंकि सभी को अगर सही मायने में पॉपुलर चाइनीज में बोलूं तो सबको रेकड़ी चाइनीज पसंद आती है। जो स्ट्रीट साइड में है वो बड़ी पसंद आती है, और वो मास मार्केट है, इसलिए वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। तो वो एक ब्रांड है कॉल ऑल अबाउट एपेटाइट, जिससे आप भर पेट खाना खाइए। और हम अपने इस क्लाउड किचन के चेन के जरिए बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, और दे भी रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और आपकी जो कला है उसको हम बहुत बड़ा बना सकते हैं। अगर आप अपने घर के किचन में, छोटे से किचन में आप कुछ अच्छी चीजें बना रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपके नाम के जरिए हम आपको और बड़ा कर सकते हैं। तो क्लाउड किचन का फॉर्मेट ये है। कोशिश हमारी जारी है कि जल्दी से जल्दी ये पैंडेमिक थोड़ा सा रिजॉल्व हो, थोड़ा सा बेहतर हो, और रेस्पॉन्सिबली सब बाहर निकल के इसको सपोर्ट करें। बिल्कुल। और यहाँ मैं आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहूंगी कि आपका सबसे चुनौतीपूर्ण भोजन बनाना या एज अ काम शेफ का जो सबसे मुश्किल हुआ हो, कभी ऐसा कोई मौका तो जरूर आया होगा, अगर जहन में याद है तो जरूर शेयर करें। नहीं, बहुत मतलब मैं आपको बताऊं, बड़ी कमाल की चीज है कि मैं एक बार नागपुर में शेफ था एक 5 स्टार होटल में कॉल तुली इंटरनेशनल, और वहां पे जब ये गुरु नानक देव जी का प्रोसेशन निकलता है, जिसको हम प्रभात फेरी कहते हैं, जब प्रोसेशन निकालते हैं सुबह तो निकलता है जी, हमारे ओनर ने कहा कि हरपाल हम लोग ना लंगर सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देंगे। तो बोले कर देंगे का मतलब समझते हो तुम? मैंने कहा मतलब, बोले कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को खाना बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं कहा इसके लिए तो मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो बोले हाँ ठीक है, आप प्लानिंग शुरू कर दो, तो लंगर बनाना है आपने। तो मुझे लगता है कि हमने उस दिन करीब 1500 किलो जो है काबुली चने बनाए होंगे, और 1500 लीटर की खीर बनाई होगी, कम से कम 10,000 से 15,000 पाव बनाए होंगे, बंस बनाए होंगे लंगर में सर्व करने के लिए, दाल उतनी बनाई होगी। तो ऐसे जो था वो बड़ा चैलेंजिंग था, और चैलेंजिंग इसलिए भी था कि उस समय मेरा होटल जो है वो सपोर्टिव नहीं था कि इसको हम बना के ठंडा करके रख सकते हैं या इमीडिएटली गरम गरम सर्व करेंगे।
तो गरम गरम तो सर्व नहीं हो सकता था, क्योंकि जब प्रोसेशन चलता है तो आप गरम गरम नहीं दे सकते, लोगों को प्लेट में देना होता है और वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पे रखने के लिए आप बड़े केयरफुल होना पड़ता था हमको कि इसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन ना हो, ये खराब ना हो जाए, खट्टा ना हो जाए, और ये सारी चीजों का ध्यान रख के हमें ये काम करना पड़ता था। तो ये मेरे लिए एक, आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऐसे प्रीमियम चैलेंजेस 5 सितारा होटल में आते ही हैं, जब बहुत बड़े वीआईपी आते हैं, तो आई स्टिल रिमेम्बर द ड्यूक Duchess or Duke of Edinburgh had come, okay, from the royal family in England, of England, and they were in Regent. So I still remember that we had to do a special dinner for them, and there were many eminent guests there. तो उनके लिए, सबके लिए करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे जैसे हमने कभी कतार में रेस्टोरेंट खोला था जब हमने, तो वहाँ के अमीर एक दिन ऐसे ही आ गए कि आई वांट टू डाइन। तो मतलब हम सब चकरा गए कि भाई द रूलर ऑफ कतर इज हियर राइट एट द लंच टाइम, एंड वी वर ऑल लाइक running helter and skelter, and then he suddenly called the manager. He said, tell the chef not to worry, I see him panicking. Whatever food you all make, please serve me, don't do anything out of the box. So we were very thrilled to hear that statement. It was so nice of him to actually do. Same thing when I go to Australia and we have our food products there. I still remember the Prime Minister, like, he actually made a statement also last year, if I remember, when he had our Prime Minister online and saying, I love making samosas. And हमारा जो पॉपुलर स्नैक है वहाँ पे सबरीनी में, वो पंजाबी समोसा है। एंड एक बैसाखी के इवेंट में he had come there and I was also showcasing my talent, so we had taste our samosas. तो ऐसे इवेंट्स मिलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाना की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आपने बात बताई हमें अभी, और ये खुशी हुई सुन के कि आपने ड्यूक और डचेस के साथ भी और इस तरह के महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी इंटरैक्ट किया और इंडियन क्यूजीन को वहां तक पहुंचाने की कोशिश में हम सभी जारी हैं। कोई आखिरी एस्पायरिंग यंग शेफ्स को कोई टिप देना चाहेंगे टू बिकमिंग ग्लोबल शेफ्स लाइक यू आर, यू आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड? चलते चलते बस एक छोटी सी टिप आप दे दें। तो सभी को मैं चाहूंगा कि जितने यंग शेफ्स है, ये जो समय गुजर रहा है ये डेफिनेटली चैलेंजिंग है। सो डोंट गेट डिप्रेस्ड कि व्हाट विल हैपन एंड हाउ विल इट हैपन एंड हाउ विल माय लाइफ टेक शेप. It is just not for you. Remember, a person who's passing from IIT is also in the same boat as you are, because there is a challenge outside and we are all facing that challenge, and I'm sure हम सब उभर के आएंगे. थोड़ा सा धीरज रखिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल अपने माइंडसेट को रखिएगा, ऑक्यूपाई करके रखिएगा अपने माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए और फ्रेश रखने के लिए डेफिनेटली योगा करिएगा, ठीक है जी. स्वस्थ खाना खाइएगा. आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं इस वक्त यूज करने के लिए. मैं जब शेफ बना था हमारे पास ये स्मार्टफोन, ये टेलीविजन, इन सारी चीजों का, इंटरनेट, किसी का भी माध्यम नहीं था. तो आप ये सब माध्यम भी इस्तेमाल कर सकते हैं to ensure that you still alive, you still able to reach out to people. Okay, you could run small kitchens from your homes. Okay, that is happening now. Family supports now. वो भी कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए हैं. All you need to do is don't get into the shell. Break the shell, come out of it, talk to people, reach out to people, be positive, and I'm sure this time will pass and you will emerge in flying colors. Don't forget that hard work is only route to success. Okay, there are no shortcuts in life. And no free lunches in life. Yes, उसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. We look forward to many more such sessions with you to inspire billions of Indians. We are out of time, unfortunately, and the session has been packed with a lot of wisdom. In the end, I'd like to thank you again for relentlessly coming online and giving us a demo even in such times. A special shout out to FSSAI
Eat Right India campaign and Herbalife Nutrition, and our broadcasting partners, Mitro, for supporting us in this endeavor. Well, the current extraordinary circumstances have given us that opportunity to clear the haze that surrounds us and to cherish food as medicine. And we've had such lovely insights from Harpalji today about healthy and sustainable diets. We look forward to joining you on many more such sessions. On that note, namaskar. Namaste and a very good afternoon to everyone here. I'm Nidhi Kumar, your host for today. And we are extremely excited to bring to you the Eat Right India initiative of FSSAI, adopted by Herbalife Nutrition in Karnataka. Herbalife is all committed to make the state healthy and safe in their series of the initiative. Also acknowledging our broadcasting partners, the very eminent Mitro app with over 50 million plus followers in India. Well, friends, over 80% adolescents suffer from hidden hunger, which includes deficiency of micronutrients such as iron, zinc, vitamin A, vitamin B12, vitamin B, and many others. जिनके पास स्वास्थ्य है उनके पास आशा है और जिनके पास आशा है उनके पास जिंदगी में सब कुछ है. We'd like to introduce with a lot of pride our guest for today, Chef Anahita N. Dhondi, who's a chef partner at Soda Bottle Opener Wala, Cyber Hub, Gurgaon in India, and has discovered the benefit of millets. She has devoted to advocating for these traditional grains. Anahita was a guest judge at the finale of the Smart Food Culinary Challenge, a reality show. It is such a pleasure to have you here with us at this Eat Right session. Thank you, Nidhi ji, for such a beautiful introduction. Thank you so much. I'm really happy to be here and most importantly, talk about ingredients that we can all use in our everyday lives. Absolutely. So every successful person today has a story behind them. What drove you towards cooking? I started cooking from a very young age, actually. My mother's been a home chef for the last 30 years. She's one of the first people, who started making things from home in Delhi and started supplying it to a lot of places like Modern Bazaar, etc. about 25 years ago. So I grew up in a kitchen, literally, where, things were experimented, and she's learned everything by the book. And she actually saw that I was very, very interested. And she pushed me to, try my hand at icing cakes and making dishes and, very, very supportive. And from the age of 10, I've been cooking and my love has only grown by folds. Oh, how lovely. In these times like this, where children are, in their homes, not being able to get out of their home, even for studies, even for schools, and also for parks, वो घर में ही कैद हैं एक तरह से. तो उनके लिए अगर हम सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की बात करें, तो आप क्या राय देंगी कि क्या देना चाहिए ऐसा? अब टिफिन तो जाता नहीं है, घर में ही बच्चे खाते हैं, they are all, mostly they love eating junk food. Of course. And I'm not going to blame them, honestly, it's the things that are around us, the marketing that's done around us, the way that these products are put in front of us. Anyone will want to, feel like having a burger or a pizza or a Chinese noodles or, any of these things. And, it's Nidhi ji, it's a very important, I think, question which a parent has, that क्यों इनको ये क्यों खाना है ये सारी चीजें ना. एड्स जो आती हैं उसमें there's melted cheese and there's beautifully falling things and vegetables and meats and all these things. So for a child it's very easy for them to look at that and be like, mummy, I want to eat that, or I don't want to eat normal dal chawal, I want to eat that. So I would say it's become very difficult for parents today to keep it interesting yet healthy for children. And not only for children, for themselves also, because you are working at home, you have children at home, you are busy and you want to make sure they get the right nutrition, yet you want to get it done quickly.
So डोमिनो फोन उठाया और ऑर्डर किया और आ गया भाई, आ गया और बच्चों को दे दिया. They are busy for 1 hour. You are doing your own work. Honestly, it's all to do with so much marketing, and I think the government also needs to come here and kind of government, private sectors, individuals like you and me, we need to talk about the importance of, you know, local ingredients. And again, just talk for this awareness to sell it. Bilkul. So we have to talk together, and most importantly, we need to talk about our cuisine. We need to be proud about Indian cuisine, and Indian cuisine is not just dal, roti, sabzi. It's so much more. It is got so many ingredients जो हम भूल गए. और honestly, वो मेरे लिए it was like a whole new world when I found millets. And I realized that it's been an ancient grain in India, जिनको मतलब मेरी generation में तो हमने कुछ खाया ही नहीं है. So if you ask us if we've had bajra or we've had ragi, we'll be like, हाँ, you know, we went to this village, we've eaten it here, किसी lady ने बनाया था. We've not really actually, you know, got our hands into it, not like tried it, not experimented. And I'm really happy to say that I have seen over the last at least 3 years, I've seen this interest which has developed, because me personally has been like, millets khao, try karo, ye karo, you know, like I have been pushing people, including my age group, older than me, younger than me, that just try it. You know, it's just a question that how do you introduce something new to your children or to your family, and you actually want them to like it, for them to make it again and again. अगर आप उनको वही porridge दे दोगे ना, रागी porridge, वो उसको देख के ही नहीं खाएंगे क्योंकि उसकी शक्ल ही इतनी खराब है. So as a chef, it is my responsibility that I make food interesting. I make it yummy. It has to be yummy. That's the most important thing. सुंदर लगेगा, खाने में tasty है, मेरे को दोबारा खाना है. So I feel that is our responsibility collectively, and as chefs, we have that creativity. तो अगर हमारे हाथों में वो creativity है, और हमें पता है कि millets are good for health, micronutrients, protein, you know, they are easily digestible, they are gluten free, they take less water to grow, सारी चीजों में वो अच्छी हैं. And India में वो इतनी ancient grain है कि हम we've been eating it. So I just feel all these things around us are there, and we just have to put it together in a dish and present it. And एक बार खा लिया, you will not turn around. So I am happy to report that millets, like millet pastas and millet noodles and millet grains, have seen a rise in the last couple of years, and I'm really happy and proud about that. And you said that they consume less water to grow, so economically also it's very viable. They're good for the planet. Sustainability. Yeah, so what I say whenever I talk about millets is, I say that they're good for the planet, they're good for you, and they are good for the farmer, because, you know, all these things come together, and that's how the ecosystem works. Absolutely. But if I ask you to give me a small demo that would appeal to children, what would be that dish? Absolutely. इसीलिए मैं kitchen में खड़ी हूँ. I know. I want to quickly give you a little demo. I promise not to take more than 10 minutes. I'm just going to set up my camera in such a way that you are able to see what I am doing. Yeah, and keep saying कि मैं ये कर रही हूँ, वाह वाह वाह, so that that's all I can do. I'm going to make it very interesting for you know, people who want to watch it. I think so this what you're showing us, Anahita, today is essentially nutrition packed, protein packed, and, you know, what all packed? I will tell you. So honestly, I will just show you the ingredients. Now, the first thing I want to show you is this bread. Now, bread तो हमारे घर में सब खाते हैं. Bread सारा time खाते हैं. You know, we eat white bread, we eat brown bread. Now we are hearing about things like millet bread, like ज्वार bread, ragi bread. Okay, so first thing हमें देखना है कि हमें carbohydrates को eliminate नहीं करना. They're not our enemies. Carbohydrates are very important for your energy. So you have to make sure that आपके पास carbohydrates हैं और आपने किस form में use करा हुआ है. So I've got whole wheat, I've got some ragi, and I've got some ज्वार in this bread. वो slice हो गया है और इसको मैं क्या करने वाली हूँ, हल्का सा I'm going to toast this, right? And I've got simple vegetables. I didn't want to do anything complicated. So I've got gajar. Everyone has gajar at home. छील दिया गाजर को.
And kheera, I've also got kheera and I've peeled the cucumber. And I've got some tomato. Now these are thoda sa exotic because I want to make a pretty dish, but you can use normal tomato also, or you can use cherry tomatoes. Now, how are we getting the protein into this dish? आप सोच रहे होंगे कि मतलब मीट डालना है या क्या डालना है? I have made a dip. Can you see this? Oh. So this dip is actually made out of chickpeas, which is your chana, Kabuli chana, and matar. So it's like a pesto cum hummus, whatever you want to call it. I will call it a spread. It's like a protein-packed spread. और इसमें क्या ingredients हैं? धनिया, मिर्ची. I put some walnuts, a little bit of olive oil. और ये इतना बढ़िया spread बन गया, which you can put on toast, crackers, anything. And so, it's got, you basically boiled the chanas and the chickpeas. You boil the chickpeas and you boil the matar, hara matar, which is peas, correct? So आपने दोनों को बॉईल करके ठंडा कर दिया, आपने अपनी मिक्सी में डाला, उसके अंदर आपने नमक, काली मिर्च डाला, उसके अंदर आपने मिर्ची डाला, green chilies, some coriander, some walnuts to give it some texture. I put a little bit of cheese क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होता है, so little bit of cheese, which is also very good in terms of getting your dairy intake. And I put a little bit of olive oil. हल्का पानी डाल के मैंने उसको पीस दिया. ये आपका dip spread बन गया. So what we are going to do, I want to show you something which you will love to make with your children घर पे अगर आपको उनको busy रखना है. इसको हम टोस्ट करने डालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इन सब्जियों के साथ क्या करते हैं. तो मैंने उसको टोस्ट करने डाल दिया ना. Very simple. You need a peeler. सबके घर में peeler होता है. And you need one cucumber. You can do this with different vegetables. I'm just showing you with a cucumber. आप इसको ऐसे peel करेंगे. ठीक है? फिर आप उसको turn करके दोबारा peel करेंगे. आप इसको दोबारा turn करके peel करेंगे. This we are not throwing this. We are going to be making some really cute little flowers. तो बच्चों को आप ये peel करके दे देंगे और फिर आप उनको बोलेंगे आप इसको roll करके दो. बच्चे busy. And you have a beautiful looking dish. So I'm going to do this. You can do this again with a lot of different vegetables. You can do it with zucchinis. I love using lauki in different ways. So I actually make lauki ke kebabs or tikkis and I also put it on toast and they come out like really excellent. So I really like using a lot of seasonal vegetables. तो और ये फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं because this gets chopped up on the side as a lovely salad. So everything gets used, nothing gets wasted, and everything looks pretty. अनामिका मैंने गोभी का फूल सुना था, गाजर का फूल तो सुना नहीं और ये. हाँ, मैं आपको सिखा रही हूँ कि गाजर का फूल कैसे बनाते हैं. So I want to show you this because it's just two things. Like it's no fancy equipment कि आप कहीं से होटल से या कहीं से आप कुछ महंगा खरीद रहे हैं. आप घर पे इनको बिजी रखने के लिए ऐसे salad. बस imagine if you just want to make a salad, how beautiful does this look? Yes, yes. You just put this, you put some salad leaves, you can put some, if you are eating non-veg, you can put some grilled chicken. If you're not, then you can put some paneer, lovely like, grilled paneer आप डाल के salad भी बना सकते हैं. मतलब, the ideas are endless. So now that we have this ready, I want to show you कि हम इसके फूल कैसे बनाते हैं. So our bread is toasted. हम bread को लेंगे. हम इसमें मक्खन भी लगाने की जरूरत नहीं है because this dip which is there, it already has cheese, it has some olive oil, it has like really, really yummy and like nutritious things. आप देख रहे हो कि I have spread it like a good layer. मतलब ऐसे नहीं कि कंजूसी से. I've properly layered it. Now is the fun part. This is where you can get your kids ready, right? तो उनको आप ऐसे देंगे एक piece, and you will tell them that beta, beti, whoever, just roll this up. Can you see this? Little yeah, so cute. Yeah. And put it here. And then you do it with the kheera. Yeah. Then you take this. Healthy eating and fun also. Budget and fun. And yeah. has all the ingredients for nutrition. और क्या चाहिए? वही तो मैं कह रही हूँ. इसके ऊपर आप कुछ, you're not putting anything. You're hiding the nutrition. So you're actually being very smart.
कि यू नो आपने कैसे इसको डाला है और कैसे इसको छुपाया है, और वो डिप इतना यमी है, वो ग्रीन कलर का है. यू नो इफ स्पिनिच वाज इन सीजन, I would have put spinach, you know, I would have done that as well. Again, if you ask me कि अच्छा कौन सी सब्जियां अभी सीजन में है, I can give you so many ideas, but you know the point is that you have to get a little creative in your kitchen. और थोड़ा सा मजा आएगा ना, तो उनको भी थोड़ा बिजी वो हो भी जाएंगे थोड़ा सा. So that's really nice. You can see that this toast is beautifully coming about. और अगर ये बच जाए and you know you don't want to waste it, the best thing to do with this is you can just put it into a salad, or you can put it into your soup. You can make a soup or a stock out of it. So मतलब कुछ waste नहीं करना चाहिए, because you know there's anyway it's being grown with so much difficulty and it's coming to you. So I don't think you know it deserves to be wasted at all. I am just showing you that how busy you can make the kids. Oh, sweet. Like how I am so busy, they would also get so busy and they would also love it so much, because you know they also have something to do. And honestly, that's quite a task for parents, you know, who are working, and they're also working from home. Children are, you know, not going to school. So it's honestly, you know, you have to think of creative ways to just keep them busy. Yeah. तो उनको लगाओ और वो अपना टोस्ट बनाएंगे. If they manage successfully, great. If they don't, they still get, you know, at the end of the day, they have some veggies with some toast. So that's how much fun it can be. We're almost done towards the end of it. This is very, very beautiful. Very beautiful. I'm just keeping all this here for a salad, which will get used. And I just want to... So basically nothing gets thrown. Yes, absolutely. I mean, I can't throw anything in my kitchen. So zero waste to hai bilkul. And इसके बाद हम इसको थोड़ा cutely garnish करते हैं, क्योंकि हम chef हैं, तो हम तो करते ही हैं. But आपकी मर्जी है, ये घर पे उगाया हुआ धनिया है. So it's just from a pot in the house. Just very cute. And थोड़ा सा, क्योंकि सब्जियों में ना actually there's no flavor on top. So I'm just putting a light drizzle. And what was that drizzle? Just some little bit of olive oil. Okay. थोड़ा सा pepper. And a pinch of sea salt. Beautiful. So easy. Excellent. Lovely. एक दो बार और दिखा दो इसको, so that the... I'll just fix the camera and then... Beautiful. Yes. So I am back. I have... Yeah. So let me just ask you, your take on organic products that you use in your food. Like we have these herbs which are most, you know, in vogue today because of the pandemic. Tulsi, Giloy, Shunti, Tawak, Haritaki. All these people are talking about and searching for them across the globe. बिल्कुल. आप इनको कैसे use करते हो? And do you think they're actually, you know, useful? I honestly, I feel like India is like a treasure trove of herbs and spices. Yes. From your basic haldi to your kali mirch, and you know things like giloy you just spoke about, to adrak. I feel like all these ingredients are part of our kitchens and they are part of our daily lives. So in terms of consumption, I don't think Indians are scared to even try such things. They're actually very forward in trying all these different herbs and spices. So, you know, right now, because of the pandemic, we've gotten to know about so many different herbs which are so good for you. And especially Giloy to matlab has gone out of the, like, it's all over the place that, you know, how nice it is, how good it is, how antibacterial it is, you know, all the great values that Giloy has.
So what I'm trying to say is now people are actually incorporating these herbs and spices into the hotel menus. So recently I tried a very nice whole box of ingredients from Taj Hotels. They've come up with a menu जिसमें गिलोय और बेल का शरबत था as a starter. And it had some anardana and some different kind of namak and some spices and ashwagandha, and I was honestly very impressed कि हमारे hotels, हमारे kitchens, हमारे restaurants finally Indian ingredients और herbs को वो value और वो pedestal पे रख रहे हैं, which they actually should have been so long ago. But yeah, absolutely, I agree. इतने टाइम में हम सब भूल गए इसको, but now that you know the value of it, it is actually making a comeback and a huge comeback. And what are some healthy snacks which you feel, other than the one that you've shown, what other examples of healthy snacking कि बच्चे बोर हो रहे हैं तो खा लें? हेल्दी स्नैकिंग तो सबसे मुश्किल चीज है और सब बोल देते हैं कि बच्चों को फ्रूट्स खिलाओ, फ्रूट्स किसी को खाना नहीं है. So I feel like there's a whole range, again, because we're very lucky in India. We have so many different things. I love making different things with papad. हमेशा सबके घर में पापड़ होता है. So with kids, again, you have to have some kind of dip which you can make very smartly. कुछ आप hummus type अगर बना लो, कोई चटनी चीज बना लो, पापड़ और उसके साथ you can snack on that. Makhanas, different flavors of makhanas, which are super trendy right now. Everyone is eating like all sorts of flavors of makhanas. I really like makhana. I also feel कि पॉपकॉर्न को कहीं ना कहीं थोड़ा अनहेल्दी बना दिया है लोगों ने, बट पॉपकॉर्न एक्चुअली इज वेरी हेल्दी बिकॉज कॉर्न इज वेरी हेल्दी. तो अगर आप घर पे बना रहे हो, with a little bit of butter, salt, pepper, there's nothing wrong with having, there is some amount of ghee, some amount of butter which should be in your diet. So there's nothing wrong with having a little fat in your food because that's actually very healthy for you. So these are some of the, ways that I like snacking, but obviously fruits and nuts तो best होते हैं. तो अगर आपके बच्चे, आपके फैमिली में लोग nuts और fruits खाते हैं तो very good. Otherwise you can always try all these other things. But I want to give you one quick idea. अगर आपको like in monsoons you're craving pakoras and you know how unhealthy pakoras are. Just make sure that you do not deep fry them क्योंकि पकोड़ा में वैसे कुछ खराब नहीं है. प्याज है, आलू है, गोभी है, बैटर है, so you can make a thick batter, you can air fry them or you can even shallow fry them. जैसे कड़ी पकोड़ा में मैं कभी भी डीप फ्राई नहीं करती पकोड़े, मैं हमेशा उसको पैन में छोटी छोटी टिक्कियों की तरह बना देती हूँ and then I put them in my curry and then put them in the air fryer. Yeah, or you can put them in the air fryer or you can shallow fry them. Also there's one very nice pan which I want to show you. This is a Paniyaram pan and this is a very cute pan. It's available everywhere. I'm seeing it for the first time. I love using this pan. This is one of my favorite pieces of equipment क्योंकि इसमें मैं कुछ भी जैसे साबुदाना बड़ा हो गया मैंने इसमें डाल दिए और मैंने ढक्कन लगा के वो कुक हो जाते हैं. कोई भी टिक्की, कोई भी cheese balls, any kind of snacky things that you want, you just have to put it on your gas, put it on and put a lid on top of it and you don't need to deep fry it. So this is a Paniyaram pan. Great. I want to talk to you now about something which is very close to your heart, Parsi cuisine. And what is one of the recipes that you'd like to share with us on Parsi cuisine and which would make keep the authenticity of the Parsi cuisine as well as, take it. I would honestly love to do a session with you on Parsi cuisine. जब मेरा book आ जाएगा next month, it should be coming out. So we will definitely plan something where I can live demonstrate. Yeah. Live कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगी. But honestly, Nidhi ji, I think what's very important in Parsi cuisine is to understand कि flavors कहाँ से आते हैं. पारसी कुजीन होता क्या है, बिकॉज बहुत लोगों के दिमाग में वो सोचते हैं कि ये पेरिस से तो नहीं है या ये मतलब कहाँ से आया है, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. सो आई फील लाइक फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो इज कि पारसीज कौन है. वो आए थे ईरान से बहुत बहुत साल पहले इंडिया में और वो गुजरात में सेटल हो गए एंड द फूड इज बेसिकली अ मिक्स
of Iranian food, Gujarati food, Maharashtrian food, Goan food, and जो British influence है, क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स के साथ काफी काम करा था. So that is the kind of flavor that we have in our food. So we are known for our, you know, bakery items, Iranian bakery items. We are known for all our pulaus and all our stews, which are very, very Iranian or Persian in nature. वहां से हमने ली हुई है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने, क्योंकि गुजरात में इतना कोकोनट है, इतनी स्पाइसेस है, you know, you get some really lovely greens as well and some fish because, you know, it's locally available. So there are lots of things like patrani, machi, and, you know, there are things like dhan saag, पारसी अंडे की जो dishes होती हैं, जो बहुत सारी होती हैं, like literally one whole book on only egg dishes because Parsis love them. You know, that's also something which I would love to share with you, the akuri recipe. So yeah, these are some of the things which are typically Parsi. Great. And you spoke a lot about millets. What other sustainable products do you see if we talk of traditional Indian grains, which could primarily highlight nutrition and sustainable diets? So I feel obviously making sure that we have a balanced diet. मतलब millets ये नहीं कि सिर्फ millets खाओ और वो इतना overproduce हो जाए और उसमें भी problem हो. So that's always about moderation. Eat your rice, eat your atta, eat your millets. You know, have protein and different sources of protein. हम protein सोचते हैं, हमें सिर्फ मच्छी और chicken हमारे दिमाग में आता है. There's also a lot of plant-based protein, like I showed you. इसमें chickpeas है जो protein है, मटर है जिसके पास protein होता है, pea protein जो होता है, दही के जो you know पानी में, like what we call whey, which we throw away sometimes when we टांगो दही, that is full of protein. तो उसको आप and probiotic. And probiotic. So whey can be used in like जब भी हम टांगते हैं वो जो बचता है या तो आप पी जाओ, बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा नमक और you know जीरा डाल के. Otherwise you take that whey and you गूंदो your atta in it. Your atta comes out so soft and it's also got all the nutrients जो आप वैसे भी फेंकने वाले थे. और अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा, at least put it in your plants because your plants will love you. Correct. You know, honestly, it's about, and this is what I've said at every session at the UN when I've spoken about, you know, sustainable gastronomy. जो अभी day था, 2 दिन पहले गया है sustainable gastronomy day. मैंने हमेशा यही बोला है कि हमें बस अपने आप को educate करना है कि हमारे आसपास क्या है. So wherever you are stuck, ask yourself that question: what can you do? You know, if you find something new, research about it, try it out, because honestly दुनिया में इतना कुछ है which you can try. In India there are so many things that we don't even use which are so good for us. So I feel like that change has to happen only जब आप थोड़ा सा education अपने आप के साथ करेंगे and you start implementing it. Absolutely. And in the end, what is your message to aspiring chefs? In the end, my message is that don't discount all the ingredients that are grown in India. Please be proud of like Indian cuisine and what all ingredients we have here. Or experiment karo, use your culinary techniques, keep cooking, make mistakes, but most importantly, love what you do every day. And on that note, I'd like to thank you so much for joining us today, Anahita. More power to you, more success to you. Thank you. And to all our friends, yes. The International Yoga Day is also a day of well-being. And let us today reflect on our physical, mental, and spiritual wellness. I'd like to thank relentlessly the FSSAI, a special shout out to Eat Right Foundation, Herbalife Nutrition. Thank you for supporting us in this endeavor, and to the Metro app. The current extraordinary circumstances have given us an opportunity to clear the haze that surrounds us in our race to do more. We have learned to cherish so many different things. We must move forward with this spirit to keep endeavoring to make a healthy and happier India. On that note, namaskar. Thank you so much. Thank you so much.